Hi, good morning. As we were talking about in last video about the question number 10, what it says, can name the reducing agent which may be used to obtain manganese from the manganese dioxide. Okay, so now in this question, I have given you to discuss or try to really get the information how you can obtain that, and I told you like here the reactivity series. On the basis of the reactivity series you can answer the question of it. All right, what happened, the reducing agent that is used to reduce the manganese oxide into manganese is aluminium. So here it is aluminium. It is used to reduce manganese dioxide into manganese and form Al2 Al2O3. All right, this reaction takes place. In this reaction, what gonna happen, if you balance this reaction, you come to know like the number of the atoms over here, that is 3, and it becomes 2, so we take 4 and it becomes 3. Now this equation is balanced now. Okay, over here the aluminium works as uh, completely like let me change the color, like reducing agent, reducing agent, and it reduces manganese to manganese and manganese dioxide to manganese. Over here the oxidation state of manganese is 4 and over here it has 0, and itself it oxidized to alumina, and it is also known as aluminium oxide. All right, so it is being oxidized, and the manganese is being reduced. So here it is reducing agent and this one is a oxidizing agent, because it is oxidizing aluminium into aluminium oxide. All right, so this is one of the problem that you have to understand, and there one thing that you really need to clearly look for. Actually, I'll make it clear. Over here the metal forms, like for example over here the metal forms aluminium oxide, and this one manganese, it is in liquid state because it forms, or it is one of kind of exothermic reaction, तो it releases बहुत सारी हीट इसमें रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो मेटल होती है दैट ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लाइक मेल्टेड मेटल की फॉर्म में ये ऑब्टेन होती है। ठीक, तो इस तरह की रिएक्शंस को यहाँ पर समझना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको साफ कर देते हैं और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट in terms of our thinking. All right, okay, now move to the next question, that is question number 11. It said, what change in color observed when silver chloride, here it is silver chloride, we discuss about it, left exposed to the sunlight, also mention the type of the chemical reaction, and they are also asking कि what type of this chemical reaction is. तो यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की रिएक्शन है और इसमें क्या होता है। ठीक, हमने इसके बारे में बात भी की है पीछे, लेकिन अब और करते हैं जिससे ये और इम्पोर्टेंट हो जाए।
ठीक। पहली चीज़, दिस इज कॉल्ड AgCl, it is called silver chloride. AgCl, this is silver chloride. Okay, when it is exposed into sunlight, it form Ag plus Cl2. We balance it, it becomes like this, and it is now gray. And in the beginning the compound silver chloride, that is white. ठीक। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जब एक्सपोज करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस और Ag में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और आप देखोगे कि ये एक तरह का रिएक्टेंट है जो हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। दैट्स वाई ये रिएक्शन होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, तो हम इसको बोल देंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज ऑल राइट। इट इज़ ए फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is about the combination reaction. Can define a combination reaction and give one example of an exothermic combination reactions. So if we talk about definition of the combination reaction, so in a reaction when two or more substance, और इसको आप ऐसा बोल दो रिएक्टेंट्स combines chemically and form single type of product is called combination reaction. That's a very simple definition that you really need to understand. Here it is, we try to take the value of it, how it is happens. So what happened really, in this reaction there is a substance like A and this is B, and the both combine and form AB. General example that normally you see in your books, that is exothermic also there are, like when you dissolve CaO or you add water into quicklime, it is called quicklime, we discuss about it. With water it forms calcium hydroxide, all right, and a name also is used for it, that is slacked lime. ओके, और साथ में क्या निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है, ठीक। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर टू बी कि इट इज़ वन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So it's a very good reaction and a very good example of it, normally used to express this type of reaction. All right, now further we discuss about a reaction, that is what is observed when solution of the potassium iodide is added to a lead nitrate. It's a repeated question again and again, by the way. If we talk about the potassium iodide and it is being added into the lead nitrate, okay, the formula of the lead nitrate is NO3 ka whole twice, and the solution of this compound is colorless solution. When it is dissolved in water, it forms a colorless solution, and when potassium iodide is added in it, what you see, it is also colorless. But the problem is when you dissolve this potassium iodide in water, after some time it looks a little bit of yellow color, a little bit,
not too much, but a little bit yellow color appeared in that bottle or a test tube when you see after some time. But if it is a fresh, it looks a complete colorless. They both react, and it is an example of the double displacement reaction also. So when the both the things gonna react with each other, what you see in a double displacement reaction, the exchange of the ions take place. ऑल राइट, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, द सिमिलर रिएक्शन इज गोइंग टू बी सेम. ऑल राइट, सो like this. Okay, here you see PbI2 plus KNO3. ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये बन के आया है ये है येलो कलर का पीपीटी, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनकर आता है, ये एकदम करी कितना दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनकर दिखाई देने लगता है रिएक्शन के अंदर. ठीक, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो बनकर आया है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, ये डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है और यही येलो कलर का पीपीटी हमको नज़र आता है. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर बड़ा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर 2 टाइम हो जाएगा बिकॉज हियर आर द 2 एंड इट बिकम्स ऑल्सो 2 एंड इट इज़ ऑल्सो बैलेंस. तो यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल displacement reaction and also example of the precipitation reaction, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है या फिर रिएक्शन हो चुकी है. ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा. ऑल राइट, ओके, तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया है. यहाँ पे ये किस टाइप की रिएक्शन है ये भी बता दिया गया है. अब बात करते हैं हम डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे. ऑल राइट, अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जहाँ पर हीट क्या होती हो, रिलीज होती हो. और अगर तुमसे कहे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मतलब जहाँ पर हीट गेन होती हो. ठीक, तो किसी रिएक्शन में अगर हीट गेन हो रही है तो हम उसको बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर किसी में एब्जॉर्ब हो रही है तो हम बोल देंगे, रिलीज़ हो रही है तो हम बोल देंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात कर लें, तो जब भी कोई भी फ्यूल जलता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात करें, देन दिस ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जब भी हम बात करते हैं जैसे कुकिंग ऑफ फूड, ऑलराइट, और फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शंस जो भी होती हैं. ठीक, एक्सेप्ट यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, एक्सेप्ट डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, तो वेजिटेबल वेस्ट का जो डीकम्पोजिशन होता है उसके अंदर क्या पाओगे आप कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक ना होकर एंडोथर्मिक ना होकर कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक हो जाती है. ठीक, ये बड़ा जनरल सा एग्जांपल है. ठीक, तो अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर आपने देखा होगा सड़ी गली चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी रहती हैं, वहाँ पर घास वगैरह जो होती है उग नहीं पाती.
लेकिन उसके ना उगने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो यही होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है वो जब डिकम्पोज होते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एंड दैट हीट causes a lot of the damage to the plants और other species over there. That's why वहाँ पर क्या होता है कि हम पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी क्रॉप वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती. Alright, okay, now move to the next thing. We were talking about the exothermic reaction. So we said like burning of the fuel is itself an exothermic reaction, but there are some more reaction those were exothermic, like respiration. Okay, respiration, this is also exothermic reaction. Okay, the uh, some of the combination reaction, they are also exothermic reaction. There are exothermic reaction or the changes. Okay, so here we understand these all the distinguishes that by them हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर reactions किस किस तरह की हो सकती हैं. Okay, now we are moving to the next page. All right, all right, all right. Okay, all right, इसको डिलीट कर देते हैं और फर्दर वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. Wow, it is also one of the good question. Here it is talking about, let me change the color. Okay, displacement reaction and double displacement reaction. Okay, the displacement reaction का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, that is you are seeing this reaction over here. It is an example of the displacement reaction. These were also known as single displacement reaction. So over here what happened, the more reactive metal all right, displaces less reactive metal from its salt. Less reactive metal from its salt. This is called the single displacement reaction. यहाँ पर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू, जो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद कलर हो जाता है सोल्यूशन का पेल ग्रीन, और ये रफ ग्रेनुलर मटेरियल आयरन का जो भी नील वगैरह लेते हैं उसके अराउंड कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टेड. ऑलराइट, ये क्या होती है, एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ठीक, बेसिकली बहुत अच्छी रिएक्शन है ये. तो इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस नज़र आती है. अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा अभी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम रिएक्शन करवा दें किसके बीच में, ऑल राइट, it becomes a little bit larger in size. Okay, like PV NO3 का होल ट्वाइस, और रिएक्शन करवाए थे हम इसकी KI के साथ. तो रिएक्शन होगी और एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस. ऑल राइट, और हमारे पास बन के आता है PbI2 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम KNO3. ऑल राइट, इट इज़ कॉल्ड PPT, लेड आयोडाइड PPT, जो कि कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है. बहुत अच्छे, येलो कलर का होता है. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है. तो जिसमें
exchange of ions, exchange of ions, both cation and anion, takes place is called double displacement reaction. Displacement रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होती है ना, तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, समझ रहे हैं आप, मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। इवन नॉर्मली ये मेटल मेटल के बीच में होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक, उनके डिफरेंसेस की वजह से ये रिएक्शंस नॉर्मली टेक प्लेस करती हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। ओके, तो हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। इन्होंने कहा है यहाँ पर आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ रिएक्शन दीज आर, फॉलोइंग रिएक्शंस किस तरह की हैं, इस बात को आपको बताना है। तो आप देखें, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल है जो डिस्प्लेस कर रही है किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से। दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन आपको ध्यान होगा A प्लस बी व्हेन कंबाइन दे फॉर्म AB, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई हाइड्रोजन गैस है जो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रही है और फॉर्मेशन कर रही है वाटर मॉलिक्यूल का, जो कि एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। दैट्स वाई इट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट्स इट। तो both the reactions are completely solved. I hope you understand that. बहुत बढ़िया, चलो मूव करते हैं। ऑल राइट, हियर इट इज़, व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स को समझने से पहले आप ये समझें कि ये रेडॉक्स जो वर्ड लिखा हुआ है, इट इज़ इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। व्हाट इज़ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ से लिया गया है रेड और यहाँ से लिया है OX। तो व्हेन इन ए रिएक्शन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, और इन एंटायर वर्ल्ड every reactions except the reactions those were takes place in half cell reactions, वो 12th का टॉपिक है। तो उसको छोड़कर क्या होता है कि सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। जैसे यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने रिएक्शन कराई O2 की HCl के साथ, रिएक्शन होगी, बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 एंड प्लस H2O। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ ना, तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है इसको, ठीक है। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इन दिस सिनेरियो व्हाट यू सी, दिस मैग्नीज इज बीइंग reduce, ठीक, and this chlorine is being oxidized. All right, chlorine is being oxidized.
ठीक, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया, यहाँ पर ये भी -1 में है और ये भी -1 में, दैट्स वाई नो चेंज, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर चेंज आ रहा है, ये +4 में था, यहाँ पे जाकर +2 में हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर -B में था, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी की पूरी 0 हो गई है। ये यहाँ पे +1 में था, यहाँ पर भी ये +1 में ही है, यहाँ पे -2 में था, ये भी यहाँ पर -2 में ही है। दैट्स वाई जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया होगा वही रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में कंसिडर किए जाते हैं। तो मैग्नीज इज बीइंग रिड्यूस एंड क्लोरीन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपली ये इस चीज़ का एग्जांपल हो जाता है। ऑलराइट, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्रोजन। ठीक, देखो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं ऑल हैज़ सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस, और वी कैन से लाइक कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उनको किसी न किसी वे में नुकसान पहुंचाती है। ठीक, द क्रोजन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द मेटल्स। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जब इन्वायरमेंट में हम एक्सपोज कर देते हैं तो इन्वायरमेंट में पड़े पड़े वो क्या होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, मतलब उनके ऊपर एक जंग जैसा आ जाता है। ठीक, तो वो जो जंग आता है इन्वायरमेंट से रिएक्ट करने के बाद उसी को बोलते हैं हम क्रोजन। बस ये सोच लें कि क्रोजन क्या है, एक जो मेटल्स होती हैं उनको ईट अप कर लेता है इन्वायरमेंट और उनको डैमेज कर देता है, उनको मतलब क्रोड करने के बाद बर्बाद कर देता है। दैट इज़ रीज़न ऑफ द क्रोजन। तो इसके कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। उन सबको समझने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि भाई क्रोजन है क्या। ठीक, तो हमको पता है क्रोजन क्या है, दिस इज़ हैपन्ड इन द मेटल्स, और मेटल्स क्या होती हैं, खुद ब खुद ही इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद डैमेज होने लगती हैं। उसी को बोलते हैं हम कि ये क्या है, एक तरह की डिसएडवांटेज है फॉर द मेटल्स। क्योंकि इकोनॉमिकली हम देखते हैं ब्रिजेस और बहुत सारी मोटर कार्स वगैरह वगैरह उनके ऊपर जंग आ जाती है, और इस जंग की वजह से किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई आयरन की चीज़ हो, वो रिएक्ट करती है मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्ट करने के बाद बना लेती है वो Fe2O3 डॉट X, और X की जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं नंबर, जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं 32। ठीक, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन ऑलराइट, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसका कलर जो होता है हम जानते हैं रेडिश ब्राउन। आपने लोहे की चीज़ों पे देखा होगा रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमको नज़र आता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर रिएक्ट करता है CO2 प्लस H2O से, और इससे रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है COOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ऑलराइट, एंड ये बोथ द कंपाउंड लुक्स ग्रीन। जैसे आपने देखा होगा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर, दैट इज़ ब्राउन स्टैचू एंड इट लुक्स लाइक अ ग्रीन नाउ। ऑलराइट, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल और क्रोजन ऑफ द कॉपर। If we talk about the silver, then silver reacts with H2S, alright, and it forms like this, alright, okay, once again it forms this, a black color coating on itself. Likewise, aluminium reacts with environmental oxygen and form Al2O3.
it is also called corrosion. But the corrosion of aluminium, tin और जिंक, दे आर सेल्फ प्रोटेक्टेड. ये फर्दर किसी भी मेटल का corrosion नहीं होने देते, जिससे क्या होता है कि ये खुद को ही प्रोटेक्ट करने लगते हैं. ऑल राइट, दिस वर द सम ऑफ द एग्जाम्पल एंड डिसएडवांटेजेस कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस पहुँचाता है और किसी भी देश की इकोनॉमी को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट रेंसिडिटी. एक अच्छा टॉपिक है. हाउ कैन बी रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द रेंसिडिटी. आपने देखा होगा कि जो फैटी और ऑयली फूड होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, अगर हम उनको खुले में रख दें, अगर उनको ठीक से फ्रीज़ ना किया जाए, या फिर आप ऐसा मान लो कि उनको अच्छी जगह पे ना रखा जाए जिस कंडीशन में वो बहुत लंबे टाइम तक सेफ रह सकते हैं, तो आप देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं. ठीक, इस सड़ने को ही बोलते हैं रेंसिडिटी. ऑलराइट, दिस प्रोसेस इटसेल्फ कॉल्ड रेंसिडिटी. ठीक, और जो रेंसिड फूड होते हैं इनके अंदर एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ब्यूटानोइक एसिड. क्या बोलते हैं? ब्यूटानोइक एसिड. और ये ब्यूटानोइक एसिड की वजह से क्या आती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज स्मेल आती है और इवन उसका टेस्ट और ऑर्डर, समटाइम बोथ, मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ चेंजेस. ठीक, तो दिस इज़ हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट, कि जब क्या होगा, खाना रेंसिड हो जाता है या कोई भी ऑयली मटेरियल वगैरह रेंसिड हो जाता है, तो उस सिनेरियो में ऐसी कंडीशन आती है. ओके, अब इसमें जो अगली चीज़ पूछी गई है वो है कि हाउ टू रिड्यूस दैट. ठीक, तो रिड्यूस करने के कई रीज़न हैं. उनमें जो सबसे अच्छे रीज़न्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि खाने को फ्रीज़ में रखना चाहिए. तो पहला ऑप्शन हमारा यहीं से शुरू होता है कि हम खाने को फ्रीज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखकर. ठीक, पहला. दूसरा, आपने देखा होगा चिप्स वगैरह जो आते हैं, तो चिप्स को क्या किया जाता है, नॉर्मली चिप्स को रखा जाता है पैकेट्स में, और पैकेट्स के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन. और ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ये रिएक्ट नहीं करती फैट के साथ, और जब फैट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो भाई हम देखेंगे कि वो रेंसिड भी नहीं होगा. ओके, तीसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि नॉन रिएक्टिव गैसेस का यूज़ करके, ऑलराइट. इस तरीके से क्या किया जाता है, खाने को बहुत लंबे टाइम के लिए सिक्योर किया जा सकता है. ऑलराइट, ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट पहुंचने के साथ साथ यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. क्वेश्चन नंबर 20, इधर इसमें बोला गया है यहाँ पर कि corrosion different from rusting. How is corrosion different from rusting? इनके corrosion रस्टिंग से डिफरेंट कैसे. ठीक, तो देखो, रस्टिंग corrosion क्या है, एक वाइड रेंज है, बहुत बड़ा वर्ड है. तो आप इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि जब किसी भी मेटल पर नेचर की वजह से अगर कोई भी इफ़ेक्ट होता है, ऑलराइट, तो उस इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक, जो मेटल डिस्ट्रॉय होती हैं, एक्सपॉइल्ड होती हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम corrosion बोलते हैं. बट द रस्टिंग इज स्टैंड फॉर ओनली द आयरन. आयरन में जो प्रॉब्लम आती है या वो उसमें जो corrosion होता है, दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग. तो इट इज़ डिफरेंट इन दैट केस. ऑलराइट,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट कि व्हाट इज मीन्ड by the endothermic and exothermic reaction and give suitable example. We have discussed a lot about that, so it's clear over here. Next question, define different type of chemical reactions and give example of each. हमने पिछली टाइप की जो रिएक्शंस में बात की थी अभी, तो हमने एक तो बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी बात की हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप भी देखे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर बात की थी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। फिर बात की थी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक। और फिर उसके बाद बात की थी हमने रेडॉक्स रिएक्शन की, जिनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते थे, ठीक। तो हम इस सब के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बात कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमको फर्दर इस चीज़ को अपना टाइम देना चाहिए, ठीक। और अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी वैसे, लेकिन मैं एक बार और इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर होता क्या है। नॉर्मली जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, ऑलराइट, ठीक। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, वाटर लेते हैं रूट के थ्रू, ठीक, और सन से लेते हैं सनलाइट। और जो क्लोरोफिल होता है, फिल, ठीक, जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन मटेरियल होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल यहाँ पर सनलाइट को गैन कर लेता है और फिर इसका यूज़ करता है बॉन्ड को ब्रेक करने में कार्बन डाइऑक्साइड के, और फॉर्मेशन करने में किसका, C6H12O6 का, ठीक। और साथ ही बनता है यहाँ पर 6H2O और निकलती है O2 गैस, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो सनलाइट है दैट इज़ बीइंग यूज्ड, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डन। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आ रही है सनलाइट की, यानी कि गैन होकर आ रही है। दैट्स वाई हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल मानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाई इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू थिंक, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हमारे पास ये रहा, सपोज करो एक वाटर मॉलिक्यूल, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर आप पाओगे कि यहाँ पर क्या होगा, एक तो बनेगा हमारे पास H2 गैस और दूसरा बनेगा हाफ O2, ठीक। अगर ये इसके हमने वन वॉल्यूम लिया है तो इसका भी क्या होगा, वन वॉल्यूम, और इसका क्या होगा, हाफ वॉल्यूम, ठीक। यही सिमिलर चीज़ ये कह रहे हैं, वाई इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, यानी कि डबल क्यों होती है एक इलेक्ट्रोड पर दूसरे इलेक्ट्रोड से, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो पूरा बन रहा है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो हाफ बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, जो एक ऑक्सीजन आपस में जुड़ने के बाद जब दो बनाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर पूरा एक मॉलिक्यूल है जो हमको पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो 1 का 1 ही रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम का रेशियो 1:1/2, जिसको हम अगर करेक्ट करेंगे या सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1।
दैट इज़। तो यहाँ पे डबल रेशियो बनता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, और 1 टाइम रेशियो बनता है किसका, ऑक्सीजन का। ऑल राइट, दैट्स इट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हियर इट इज़ कि व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि आप जानते हो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल, इट इज़ क्विकलाइम, क्विकलाइम। ऑल राइट, इन ए कंटेनर राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर द सेम, यानी कि इसके लिए एक केमिकल फार्मूला लिख दो। तो हमको पता है यहाँ पर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या करते हैं हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, रिएक्शन होती है और बन के आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ दिस, इट इज़ द क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम। डन। ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी दूसरी रिएक्शन की, इट इज़ इट सेल्फ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई गिव वन यूज़ ऑफ द क्विकलाइम। तो क्विकलाइम को पानी में मिलाने के बाद एक यूज़ तो होता है वाइट वॉश करने का, वाइट वॉश करने का, और इसका एक यूज़ और है एंटी एसिड के लिए, एंटी एसिड की फॉर्म में। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी एसिड, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ यूज़ ऑफ दिस। ओके, बाकी इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, इन द डिफरेंट फॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट इसको खा लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्बिनेशंस के बाद। राइट, गिव 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। वी नो एक होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, ठीक। फिर होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर का डिसोसिएशन किया था। फिर लास्ट में बचता है हमारे पास एग्जांपल, दैट इज़ ए फोटोलाइसिस। इसके अंदर सनलाइट का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे कौन कौन से डीकम्पोजिशन के 3 टाइप के। फिर कह रहे हैं नेम द कंपाउंड यूज फॉर टेस्टिंग CO2। किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है CO2 को टेस्ट करने के लिए, ठीक। तो इसके अंदर क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। और अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर और द सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन, जिसके अंदर अगर हम CO2 गैस को पास कराएं तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर निकलता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ये मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट PPT की फॉर्म में, ठीक। इससे हमको पता चल जाता है कि ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। और अगर हम फर्दर इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर और पास कराते जाएं, मतलब इस कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है इसके ऊपर हम फर्दर CO2 को पास कराते रहें, तो आप पाओगे कि जो ये PPT बना था, PPT मतलब इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा जिसके अंदर ये बना है, उसके अंदर और पास करवाएं तो ये रिएक्शन करता है फिर से, और इस बार जो बनाता है ये बनाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कि यहाँ पर कलरलेस एंड सॉल्युबल इन वाटर है, इन वाटर, दैट इज। ऑलराइट, यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। हमने इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से किया है, इसके सारे क्वेश्चन डन हो चुके हैं। अब फर्दर हम नेक्स्ट वर्कशीट पे मूव करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने पॉसिबली उन सब के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई चीज़ तुम्हारे समझ में नहीं आई, प्लीज़ कमेंट एंड आई
पक्का रिस्पॉन्स करूँगा तुमको, ठीक, और हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। All right, the some of the question that I'm gonna upload next time, and very soon I'm going to upload them on the same channel. So please subscribe and share with your friends. That will motivate me to make more knowledgeable and the good videos. Thank you very much.